Jai Hind, the official YouTube channel of Safei Medical University welcomes you. Do not forget to subscribe to your very own health channel so that you can keep getting latest updates the moment we upload them. Friends, as you are well aware that we at Safei Medical University are providing top-class treatment to the patients admitted at our COVID-19 hospital, testifying our effective, holistic approach to combating coronavirus. Till date, 82 COVID-positive patients have been treated successfully and discharged. In addition to the frontline battle against this pandemic, the hospital management is also ensuring 24/7 emergency services for the benefit of the non-COVID patients too. These emergency services include trauma and emergency, medicine ICU, dialysis, head injury ICU, labor room, burn ward, etc. The recent EOPD initiative launched by the university is providing much needed respite to the patients who can now consult our medical experts over mobile phone, and till date more than 500 patients have benefited from this unique modality. Just to give you a glimpse of the data pertaining to the patient load in the past few days, around 250 to 300 serious patients requiring emergency services are being catered to on daily basis. Apart from this, around 100 serious patients are being treated as inpatients, admitted to the medical ICU, head injury ICU, labor room, dialysis center and burn ward. Department of Ops and Gynecology UPUMS Safei is performing around 15 to 20 deliveries and cesarean operations daily. Trained and qualified medical teams are providing round-the-clock dedicated services for the COVID as well as non-COVID patients in the university. The recently started dialysis center at the ground floor of trauma and emergency building, comprising of 15 dialysis machines, is providing life-saving routine hemodialysis services to around 30 patients daily. In addition to this, emergency dialysis service is also being provided to the patients admitted in the medical ICU located in the same building by 2 dedicated dialysis machines. Let us hear, friends, Dr. Professor Rajkumar, the Vice Chancellor of UP University of Medical Sciences, Safei, about the vital emergency services being provided. जो आज देख रहे हैं ये हमने नया इंतजाम किया। पहले ये जो हमने कोविड हॉस्पिटल बनाया है उसमें चलती थी। लॉकडाउन में चूंकि डायलिसिस कंटिन्यू रखनी थी तो 2 इमरजेंसी बेड हमारे पास थे जिसमें राउंड द क्लॉक डायलिसिस हो रही थी आईसीयू में। तो वो ऐसे तो आईसीयू के लिए डेडिकेटेड था, किंतु जब आवश्यकता पड़ी तो उसमें राउंड द क्लॉक हमको चला के पेशेंट्स की डिमांड जो थी उसको पूरा करना पड़ा। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड ही जैसा कि हम जानते हैं कि डायलिसिस यूनिट चलाने के लिए बहुत बड़े आरओ प्लांट की आवश्यकता होती है, जिसमें अभी आप गए थे शायद। तो वो आरओ प्लांट लॉकडाउन के पीरियड में इंस्टॉल करना नया बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हमने उसको युद्ध स्तर पर हमारी टीम ने तैयार किया। उसमें मेडिसिन के विभागाध्यक्ष ने, हमारे प्रोवीसी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सभी ने इंटरेस्ट लेके व्यक्तिगत तौर पे उसको इंस्टॉल करवाया। और आप देख रहे हैं ये 15 बेड अगर सुबह आते तो ये सारे के सारे भरे होते हैं, क्योंकि 4 घंटे में डायलिसिस का सेशन पूरा हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि 15 के 15 अभी भी 1-2 छोड़ के बाकी सब भरे हुए हैं। कुछ की डायलिसिस हो चुकी है और आपने देखा मैंने सबसे हाल चाल पूछा तो सभी लोग खुश हैं। तो इस इलाके के लिए बहुत बड़ी राहत है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ कि इन 15 बेड्स के अलावा 2 बेड वो जो आईसीयू में डायलिसिस के इमरजेंसी डायलिसिस के लिए चल रहे थे वो अभी भी एक्टिव हैं और उनमें आईसीयू से रिलेटेड डायलिसिस होती है। अच्छा, और यहाँ ये बताना उचित होगा कि डायलिसिस का हमारा प्रोटोकॉल है। इन्फेक्शन रोकने के लिए, कोरोना इन्फेक्शन कैटर करने के लिए हर वीक डायलिसिस वाले पेशेंट की जब भी ये होती है उसका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से हम कोरोना टेस्टिंग करवाते हैं ताकि हमारे हेल्थ वर्कर भी प्रोटेक्टेड रहें और ये जिनकी डायलिसिस होती है वो भी प्रोटेक्टेड रहें। तो इसके अलावा आप जानते ही हैं हमारी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसमें हमने कोई भी हेल्थ सर्विस पैरालाइज नहीं होने दी। लॉकडाउन के टाइम भी कंटिन्यूअसली इमरजेंसी सर्विसेज चलती रहीं। इधर 2-3 मास कैजुअलिटी एक वीक में आई, उनको भी हमने ट्राइजिंग में रखा
कोरोना की सारी प्रिकॉशंस लेते हुए हमने जो बेस्ट पॉसिबल था, आप इंडिविजुअल पेशेंट से बात कर सकते हैं, केवल दवा और मेडिसिन नहीं। आप देखेंगे कि अगर जरूरत पड़ी तो हमने टूथब्रश और सोप तक भी मुहैया करवाया ताकि लोगों को दिक्कत न हो। तो इस समय हमारा यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी का स्टाफ, हमारे फैकल्टी, इस समय जब देश में इमरजेंसी है कोरोना की, तो केवल कोरोना को केयर नहीं दे रहे हैं, वो एक व्यक्तिगत केयर हम लोग देने की चेष्टा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास, जैसा कि आप लोग अक्सर आते रहते हैं, हमारी एब्सेंस में वीडियो बनाते हैं, कुछ खुराफाती लोग, कुछ नेगेटिव एलिमेंट हर जगह होते हैं, वो केवल नेगेटिव चीज़ें ही बनाने के लिए आते हैं या उनको जाके फ्लैश होती है, उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे पास फैकल्टी भी कम है, अभी हमारे पास लोअर स्टाफ भी कम है, उसके बाद भी हम जो है सर्विसेज पूरे मन से, शिद्दत से, चाहे वो डायलिसिस हो, चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो एंटीनेटल केयर हो, चाहे वो पोस्टनेटल केयर हो, चाहे वो ऑब्स्टेटिक केयर हो, चाहे वो सर्जरी, सेमी इमरजेंसी या सर्जरी की आवश्यकता हो, इवन न्यूरो सर्जरी को हम पूरी केयर देने की कोशिश कर रहे हैं। और कोरोना के बारे में आप जानते ही हैं, इस यूनिवर्सिटी का मेरा ख्याल एक रिकॉर्ड यूपी में तो है ही है कि हमने 77 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए हैं और अभी आने वाले दिनों में जल्दी ही हम और पेशेंट डिस्चार्ज करेंगे। तो जैसा कि आप देखेंगे कि हमारी टीम, इस समय हमारा कोई भी एम्प्लॉई जॉब नहीं कर रहा है, इस समय हमारे सारे एम्प्लॉइज अपना फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। और इस समय आप जैसे लोगों का, मीडिया के लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग गलत मैसेज समाज को न दे पाएँ, प्रदेश को न दे पाएँ, राष्ट्र को न दे पाएँ। कभी कभी छोटी मोटी गलतियां अगर हमसे होती हैं तो हम उनको तुरंत रेक्टिफाई करते हैं। जब आप जानते हैं, जब बड़े स्तर पर काम चल रहा होता है तो कभी कभी छोटी मोटी मिनिस्ट्रियल मिस्टेक या छोटी मोटी चीज़ें हो भी जाती हैं, उनको जैसे ही मेरे संज्ञान में आता है हम तुरंत उनका रेक्टिफिकेशन करते हैं, ताकि जनमानस को, जनसाधारण को असुविधा न हो, भ्रांतियां न फैलें, सर्विसेज जो चल रही हैं वो पब्लिक को दिखाई पड़े। धन्यवाद सर। जिस तरह से डायलिसिस चल रहा है इन 2 महीनों में, सबसे ज़्यादा कितने पेशेंट यहाँ से डायलिसिस करवाते गए अनुमानित? अब एक दिन में ये 15 बेड हैं, तो एवरेज 30 पेशेंट की डायलिसिस तो हम कर ही देते हैं, 25 से 30 पेशेंट की डायलिसिस तो कर ही देते हैं। लेकिन कभी कभी जब लोड ज़्यादा आ जाता है तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्टाफ के कांस्टेंट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि उतने की होगी। अगर शेड्यूलिंग है, क्योंकि ये रूटीन डायलिसिस है, अगर शेड्यूलिंग है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, तो हम डायलिसिस के लिए वेट नहीं करवाते, जरूरत होती है तो हम डायलिसिस के आवर्स बढ़ा देते हैं। लगभग यहाँ आसपास के कितने जनपदों को इसका पता है? अब ये तो आप जानते हैं कि ये एरिया पूरा, अगर आप मथुरा से ले लें और कानपुर तक, तो हमारी यूनिवर्सिटी तो अभी प्राइम यूनिवर्सिटी हो गई, चाहे वो कोरोना के लिए हो, चाहे वो इमरजेंसी के लिए हो, चाहे वो डायलिसिस के लिए हो। आप जानते हैं 28 पेशेंट अभी कल के एक्सीडेंट के एडमिट हैं और सारे स्टेबल हैं। उनमें आते ही तुरंत पहले हमारा इंस्ट्रक्शन है, पहले ट्रीटमेंट शुरू करो, बाद में डेटा कलेक्ट करो। केवल जो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक है वो पहले करो। जैसे आप लोग तुरंत पूछने लगते हैं कि साहब कौन कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसमें हम बाद में उलझते हैं। पहले ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करिए, उसके बाद वो ट्रीटमेंट इंस्टीट्यूट करते ही बाकी का डेटा कलेक्ट करिए, ताकि जो है उनके परिजनों को और जो भी संबंधित लोग हैं उनको सूचना दी जा सके। थैंक यू वेरी मच।